हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के फुल सिलेबस के टेस्ट 2 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। ये पार्ट 2 का वीडियो है। इसके पार्ट 1 का वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 71, पैरेलल गवर्नमेंट्स वेयर फॉर्म्ड एट बलिया एंड सतारा ड्यूरिंग व्हिच मूवमेंट? ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू मेक पाटलिपुत्रा इट्स कैपिटल? द हर्यक डायनेस्टी रूलर उदयन और Udayabhadra first established the city of Patliputra as capital at the confluence of the Ganges and Son rivers. Earlier, its capital was at Rajgriha. So, right option will be D. Udayin. Next question: who had formed the देशोद्धारक दल in संथाल परगना? देशोद्धारक दल in संथाल परगना तो वो थे लाल हेम्ब्रम। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश ऑफिसर साइन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विथ महाराजा रंजीत सिंह इन 1809? तो महाराजा रंजीत सिंह साइंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर विथ द ब्रिटिश इन 1809. द ट्रीटी वाज साइंड बाय चार्ल्स मेटकॉफ ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश. चार्ल्स मेटकॉफ. राइट ऑप्शन विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायसराय वाज assassinated in Port Blair? Viceroy Mayo was assassinated by an Afghan Sher Ali in 1872 at Port Blair. So right option will be Lord Mayo. A. Next question, the formation of a galaxy begins with the accumulation of giant cloud made of which gas? So hydrogen gas. Right option will be C. Next question, according to Alfred Wegener, about how many years ago the division of Pangaea started? Alfred Wegener gave the theory of continental drift in 1912. According to Alfred Wegener, the division of Pangaea started about 200 million years ago. 200 million years ago. To 20 crores. Right option will be B. Next question, Cocos Plate is situated between which of the following? The Cocos Plate is located between the Central America and the Pacific Ocean Plate. Central America and Pacific Ocean Plate. Right option will be B. Next question, at what height above the Earth's surface are the cumulus clouds formed? Cumulus clouds are formed at an altitude of 8,000 to 12,000 meters. These are thin and scattered clouds which appear like feathers. They are always white in color. So right option will be C, 8,000 to 12,000 meters. Next question, at what place does the world's highest tide come? The world's highest tidal range occurs in the Bay of Fundy in Nova Scotia, Canada. The height of the tidal bulge is between 15 to 16 meters. So right option will be C, Bay of Fundy. Bay of Fundy या Fundy. Next question, the descending order of the 3 largest union territories in terms of area. तो इसमें से देखें तो अंडमान एंड निकोबार का एरिया 8,249 स्क्वायर किलोमीटर है, दिल्ली का 1,483 स्क्वायर किलोमीटर है और पुडुचेरी का एरिया 490 स्क्वायर किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा है अंडमान एंड निकोबार का, अंडमान एंड निकोबार, देन है दिल्ली और देन पुडुचेरी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम, कैलाश, जस्कर एंड लद्दाख माउंटेन रेंजेज आर पार्ट ऑफ व्हिच हिमालय? तो ये सभी ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं, ट्रांस हिमालय। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिवर इज कॉल्ड मोस्ट ट्रीचरस रिवर इन द वर्ल्ड? वो है हुगली। राइट ऑप्शन सी होगा। व्हेन द रिवर गंगेस रीचेज वेस्ट बंगाल इट डिवाइड्स इनटू 2 मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज नेम्ड भागीरथी एंड हुगली. Hooghly is called the most treacherous river in the world. On this coast is the port of Calcutta, which is called the London of the East, located. Next question, on what elements is Copenhagen system of Indian climate classification based? Copenhagen has classified Indian climate into 8 climatic regions.
they have made temperature and rainfall the basis for climatic classification. So right option will be E, more than 1. Temperature and rainfall. Next question, which substance is deficient in laterite soil? तो लेटराइट सॉइल में नाइट्रोजन की भी डिफिशियंसी होती है, फास्फोरस एंड कैल्शियम, इन सबों की डिफिशियंसी होती है. सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3. Next question, according to the National Forest Policy, what percentage of the area in the plains need forest cover? According to the National Forest Policy, a target has been set to achieve 33.3% forest area in India. According to this, there is a need to cover 25% of the area in the plains and 60% of the area in the hilly region. So right option will be C, 25%. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज इन्वॉल्व इन गंडक प्रोजेक्ट? गंडक प्रोजेक्ट शुरुआत में बिहार और उत्तर प्रदेश का कंबाइंड प्रोजेक्ट था, बाद में इसमें नेपाल शामिल हो गया था थ्रू एन एग्रीमेंट इन 1959. सो राइट ऑप्शन विल बी ई, मोर देन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ द लिस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स? तो उसमें सिक्किम एक है. सिक्किम जो है ओनली एक स्टेट से, ओनली 1 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, वो है वेस्ट बंगाल. और मेघालय भी ओनली 1 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, आसाम से. तो इसमें से सिक्किम हो जाएगा राइट ऑप्शन ई, राइट ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फाउंड बिटवीन विच 2 लैटिट्यूड्स? Tropical cyclones are severe low pressure weather system and are found between 30° north and 30° south latitude. Their direction is anti-clockwise in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. So right option will be D, 30° north and 30° south latitude. Next question, what is the depth area on the south side adjacent to the south embankment of the Ganga called? Tal. On the south side adjacent to the southern bank of the Ganges, deep area are found which are called Tal. So right option will be C. Next question, from which river घोघा छाप lake receives water in addition to rain? तो ये है कहाँ पे? ये घोघा छाप जो है ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है और ये महानंदा रिवर से ये रेनी वाटर के अलावा, रेनी सरप्लस के वाटर के अलावा ये महानंदा रिवर से भी वाटर को रिसीव करता है. सो राइट ऑप्शन सी होगा, महानंदा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल लिटरेसी रेट एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार एज पर 2011 सेंसस? तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार का लिटरेसी रेट है 61.8%, जिसमें से 71.2% मेल लिटरेसी रेट है और 51.1% फीमेल लिटरेसी रेट है. तो सब्ट्रैक्ट यदि हम करें तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 1 होगा, 1 में से 1 0 एंड 7 में से 51.5%, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 7 होगा और ये बच जाएगा 10 में से 1 9 और ये बच जाएगा 1, 19.7%. मेल लिटरेसी रेट एंड फीमेल लिटरेसी रेट के बीच का डिफरेंस है 19.7%. राइट ऑप्शन डी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2022-23 जेंडर बजट ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन बिहार हैव देयर ओन मोबाइल फोन? तो अकॉर्डिंग टू द जेंडर बजट 2022-23, 51.4% वुमेन ऑफ बिहार हैव देयर ओन मोबाइल फोन. 51.4. राइट ऑप्शन विल बी सी. Next question, in which district of Bihar is Ganga water being supplied under the Ganga water supply scheme? तो नालंदा और गया डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी सप्लाई किया जा चुका है, नवादा डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई करने की बात चल रही है. सो राइट ऑप्शन विल बी ई, मोर देन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इरिगेटेड बाय सोन कैनाल? तो सोन कैनाल बनाया गया था 1869 से 1874 के बीच में. शुरुआत में इससे इरिगेशन होता था भोजपुर, रोहतास, बक्सर डिस्ट्रिक्ट का. बाद में पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद एंड अरवल डिस्ट्रिक्ट में होने लगा. तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? पटना हो जाएगा, जहानाबाद, अरवल. मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें.
Next question, in which year E-Gram Swaraj, a simplified task-based accounting application for Panchayati Raj institutions, was launched? In order to strengthen e-governance in Panchayati Raj institution on the occasion of National Panchayati Raj Day on 24th April 2020, a simplified task-based accounting application E-Gram Swaraj was launched for Panchayati Raj institutions. So right option will be A, in year 2020. Next question, the Commission for Agriculture Cost and Prices advises on the minimum support price for how many crops? 23 crops. Right option will be D. The work of the Commission for Agriculture Cost and Prices, constituted for the purpose of preparing a common finance and balanced price structure, is to give advice on the minimum support price of 23 crops. This includes 7 food grains, 5 pulses, 7 oilseeds, cotton, raw jute and sugarcane. Next question, which of the following group of Maharatna companies to issue in October 2022 is not correct? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी है। गेल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी महारत्न कंपनी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, नेशनल स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये मिनी रत्न कंपनी है। मिनी रत्न कंपनी भी 12 ही है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये भी महारत्न कंपनी है। महारत्न में से नहीं कौन सी है? तो सी वाला जो है ये नहीं होगा, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द बॉम्बे प्लान, विच इज सेड टू बी ए ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? In 1944, some leading industrialists of the country presented a program to run a planned economy in the country. Since then, it is known as Mumbai Plan. Jawaharlal Nehru did not officially accept this plan. In this plan, emphasis was laid on the development of industries through government and private investment. जवाहरलाल नेहरू ऑफिशियली एक्सेप्टेड द प्लान, बिल्कुल नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था ऑफिशियली, ये गलत है। It supported state ownership of industries. In this plan, emphasis was laid on the development of industry through government and private investment. It was created by some leading industrialists. ये सही है। It strongly supported the idea of planning. Planning को तो support किया था to run a planned economy in the country. तो इसमें से मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, राइट ऑप्शन विल बी ई। मोर देन वन इनकरेक्ट ऑप्शन आ रहा है, सो राइट ऑप्शन विल बी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर ओल्ड एज पेंशन स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार? दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन ईयर 2019, ये सही है। द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम विल बी गिवन टू ऑल सीनियर सिटीजन्स हु आर 60 ईयर्स और अबव। सभी को नहीं दिया जाता है, जिनको अदर सोशल सिक्योरिटी पेंशन नहीं मिल रहा हो, किसी अदर जगह से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा हो, उनको दिया जाता है, तो ये तो गलत है, सभी को नहीं दिया जाता है। पेंशन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 60 to 79 ईयर्स विल गेट 400 रुपीज़ पर मंथ एज पेंशन, ये सही है। पेंशन अबव 80 ईयर ऑफ एज विल गेट 500 रुपीज़ एज प्रतिमा पेंशन एज पर मंथ, तो ये सही है। इसमें से गलत कौन सा है? बी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिवर्स माइग्रेशन। देयर विल बी इमेंस इकोनॉमिक प्रेशर ऑन द बैकवर्ड स्टेट्स। बिल्कुल, यदि बिहार से काम करने वाले लोग बाहर जा कर के काम करते हैं और वहाँ से लौट करके बिहार आने लगे, तो बिहार गवर्नमेंट पे, बिहार स्टेट पे इमेंस इकोनॉमिक प्रेशर आएगा, तो ये सही है। एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस विल बी अराइज इन बैकवर्ड स्टेट। बिल्कुल, जब वहाँ से ज़्यादा लोग लौट करके होम स्टेट में आएंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आएगा, ये सही है। लोगों को कम रोज़गार मिलेगा, काम कम अवेलेबल होगा, करने वाले ज़्यादा रहेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस होगा। नेक्स्ट है, इन पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी फास्टर इन डेवलप्ड स्टेट। बिल्कुल नहीं, डेवलप्ड स्टेट से जब ह्यूमन रिसोर्स ही चला आएगा, वर्कफोर्स ही चला आएगा लौट करके अपने होम स्टेट में, तो वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है स्लो हो जाएगा, तो ये गलत होगा। 3 गलत है, 1 और 2 सही है, सो राइट ऑप्शन ए होगा 1 और 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अप टू व्हाट अमाउंट द इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स आर इशूड अंडर द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2018? तो वो है 1000 से लेके 1 करोड़ रुपीज तक का। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स एंड इट्स मॉडल करेक्टली। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1974 से 79 तक था। और ये किस मॉडल पे आधारित था? ये डीपी धर मॉडल पे बेस्ड था। डीपी धर मॉडल, तो 1 का बी होगा। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1980 से 85 तक था। और ये ग्रोथ मॉडल पे बेस्ड था, तो ग्रोथ मॉडल 2 का डी हो जाएगा। सेवेंथ 5 ईयर प्लान ये 1985 टू 90 तक था, और ये प्रणब मुखर्जी मॉडल पे बेस्ड था, तो सेवेंथ का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा ए। और एट्थ 5 ईयर प्लान 1992 से 97 तक था, और ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे बेस्ड था, तो 4 का सी हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही आ रहा है? 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए एंड 4 का सी। 4 का सी राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक दैट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट नेशंस फॉर पॉवर्टी एलिविएशन? तो वो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये पुअर कंट्री को लोन देता है 20 to 40 ईयर्स के लिए, और ओनली इस पे सर्विस फी लगता है 0.75%, मतलब कह दीजिए इंटरेस्ट कह दीजिए 0.75% ओनली। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्लेशन ऑफ करेंसी इज ए सिचुएशन इन विच द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज। देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी, ये तो नहीं होगा। वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेज, ये द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज गलत है। करेंसी का वैल्यू इंक्रीज होता है, लेकिन प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीज हो जाता है, तो ये दोनों सही है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन पर कैपिटा इनकम ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ शिवहर डिस्ट्रिक्ट इन द ईयर 2019-20? तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम पटना का रहा कितना? 1.31 लाख, 1.31 लाख। और सबसे कम रहा शिवहर डिस्ट्रिक्ट का, कितना? 0.91, 1991 नहीं 19। तो यदि हम सब्ट्रैक्ट करें इसको, तो 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 होगा, और ये बच गया 2 में से 1 तो 1.12 लाख। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2022 to 23, which scheme have not been started by the Ministry of Women and Development recognizing the importance of women power? तो मिशन शक्ति ये है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है, वहीं स्टार्ट किया है। मिशन वत्सल ये भी है, न्यूट्रिशन 2.0 भी है, सक्षम आंगनवाड़ी ये भी है। तो ये सभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है ये चारों। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म रिलेटेड टू रेलवेज इन द यूनियन बजट? तो वो है कवच। ये जो है ट्रेन को लड़ने से बचाएगा, एक्सीडेंट से बचाएगा, और ये जो टेक्नोलॉजी है रेल नेटवर्क को सेफ बनाएगा और कैपेसिटी को इन्हेंस करेगा, इंक्रीज करेगा। सो राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021 to 22, व्हाट इज द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट ऑफ बिहार? तो वो है 350 किलोवाट आवर्स। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर इन बिहार ड्यूरिंग द ईयर 2020 to 21? तो कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा है बिहार में, प्राइमरी की यदि बात करें तो प्राइमरी का 19.2%, सेकेंडरी का रहा है 19.5%, एंड टर्शियरी का रहा है 61.2% कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यदि प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच का डिफरेंस हम निकालें तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 हो गया, पॉइंट ये 0 हो जाएगा, 0.3 आएगा। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी का डिफरेंस आएगा 0.3%। राइट ऑप्शन बी होगा यहाँ पे।
Next question, with reference to speed and velocity, consider the following sentences. The distance traveled by an object per unit time, it is speed, and the displacement per unit time, it is velocity. बिल्कुल, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा वो होगा स्पीड, और यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। ये बिल्कुल सही है। द यूनिट ऑफ बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। बिल्कुल नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी का नहीं होता है। तो मीटर पर सेकेंड जो होता है स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का यूनिट होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वेलोसिटी एक्सप्रेसेस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। बिल्कुल, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही हैं, मतलब वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 and 3 सही है, 1 and 3 बोथ 1 and 3 राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच इज एन ऑब्जेक्ट इट बिकम्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तभी करवा पाता है जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। जैसे कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों मौजूद होते हैं? मेटल्स जैसे मेटल के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, वो आसपास के इन्वायरमेंट से उनको उतनी एनर्जी, हीट एनर्जी मिल जाती है जिससे वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं और क्रिस्टल में घूमते रहते हैं। उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही कम होता है। इसी की वजह से ये होता है कि कम ही टेम्परेचर पे, यानी रूम टेम्परेचर पर भी रखे हुए हैं तो उतनी हीट उनको मिल जाती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है और फ्री हो जाता है, मोबाइल हो जाता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन ही हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन ही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल येलो कलर इज सीन बाय द बर्स्टिंग क्रैकर्स। तो ये होता है येलो कलर आता है सोडियम नाइट्रेट की वजह से, ग्रीन कलर आता है बेरियम की वजह से, और रेड कलर आता है स्ट्रोंशियम की वजह से। सो राइट ऑप्शन होगा इसमें से सोडियम नाइट्रेट, सोडियम डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर होता क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहा जाता है। फोर्स तो फोर्स का न्यूटन होगा और एरिया का मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होगा ये प्रेशर का यूनिट होता है, और इसी को ब्लेज पास्कल के सम्मान में इसको पास्कल कहा जाता है। तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ये भी होगा और पास्कल भी होगा। राइट ऑप्शन ई होगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए, यदि हीट इवॉल्व एंड हीट एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे हम देखें तो केमिकल रिएक्शन दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है, हीट निकलता है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन का कौन कौन सा? इनो वाटर में घोलते हैं, ग्लूकोज वाटर में घोलते हैं तो ठंडा हो जाता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, तो वो इंडोथर्मिक एग्जाम्पल हुआ इंडोथर्मिक रिएक्शन का। और चूने में क्विक लाइम CaO में जब आप वाटर डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक्ट लाइम बन जाता है, और यहाँ पे लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होता है। जब वाइट वॉशिंग की जाती है वाल का तो उस केस में ऐसा होता है, जब घोलते हैं, उसका घोल बनाते हैं, उसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो हीट निकलता है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब आते हैं ये रेस्पिरेशन में क्या होता है। रेस्पिरेशन में जैसे हम एयर इनहेल किए, ऑक्सीजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज यदि हम ले लें, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। एनर्जी ये रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर इज लिटमस सॉल्यूशन व्हेन इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो देखिए, लिटमस पेपर की बात करें, लिटमस की बात करें तो एसिडिक यदि मीडियम है तो ब्लू को लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक मीडियम में, और बेसिक यदि मीडियम है तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं यदि न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के केस में इसका कलर पर्पल होता है, पर्पल ही मतलब वायलेट कलर का होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टचिंग द लीव्स ऑफ नेटल प्लांट गिव्स स्टिंजिंग पेन।
दिस पेन इज कॉज्ड बाय सिक्रीशन ऑफ विच एसिड। तो मेथेनोइक एसिड की वजह से, इसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है, फार्मूला HCOOH होता है, इसकी वजह से दर्द होता है। चींटी के डंक में यही होता है, बिच्छू यदि डंक मारती है तो उसमें भी यही होता है। तो मेथेनोइक एसिड के प्रेजेंस की वजह से दर्द होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए अभी बताया हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी को वहीं कंडक्ट करा पाएगा जिसमें फ्री चार्जेज होंगे, मोबाइल चार्जेज होंगे। तो इसमें से जो भी सब्सटेंस यदि वाटर में डिजोल्व करते हैं, यदि सॉल्यूशन में यदि वो आयंस में टूटा हुआ है, वह आयंस में ब्रेक किया हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। और यदि आयंस में ब्रेक नहीं हुआ है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा पाएगा। तो यदि बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH की, NaOH, तो ये Na+ और OH- में ये टूट जाता है, टूट जाएगा, इसलिए और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देगा। इस सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट है, Na+ एंड OH-। एसिटिक एसिड की बात करें तो CH3COOH, CH3COOH, हालांकि ये वीक एसिड है, फिर भी ये सॉल्यूशन में CH3COO- और H+ में ये टूटा हुआ रहता है, टूट जाता है, इस कारण से ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन की बात करें, यदि HCl की बात करें हम, HCl, तो ये H+ और Cl- में ये टूट जाता है, H+ एंड Cl- में टूट जाता है। तो ये भी, इसमें भी आयंस प्रेजेंट है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन ग्लूकोज की यदि बात करें, ग्लूकोज का सॉल्यूशन यदि हम तैयार करते हैं तो ये इसमें आयंस नहीं बनते हैं, आयंस अपोजिट आयंस प्रेजेंट नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता है, दैट्स वाई ये ग्लूकोज सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा पाता है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा कंजर्वेशन डेफिनिट प्रोपोर्शन, डेफिनिट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये दो चीज़ों को, या कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह दीजिए, ये दो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मान लीजिए ए और बी दो रिएक्टेंट से, ए और बी मिलकर के C एंड D प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो रिएक्शन से पहले रिएक्शन मिक्सचर में ये A एंड B प्रेजेंट है, इनका मास कैलकुलेट कर लीजिए, और रिएक्शन जो हो गया, रिएक्शन के बाद रिएक्शन जब हो गया तब C एंड D बन गया, तो C एंड D का मास कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप पाएंगे कि A+B का मास C+D के मास के इक्वल होगा। मतलब रिएक्टेंट्स का मास, प्रोडक्ट बिफोर रिएक्शन रिएक्टेंट्स का मास, आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट का मास इक्वल होगा। मतलब ये रहा कि टोटल मास जो है ना चेंज हुआ ही नहीं, मतलब मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। रिएक्शन कहीं पर भी होता है, जस्ट एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है, न तो बाहर से कोई एटम आता है, न अंदर से निकल करके बाहर जाता है एटम, जस्ट एटम का रीअरेंजमेंट हो जाता है। दैट्स वाई मास कंजर्व रहता है, और मास कंजर्व रहता है इसलिए हम किसी भी केमिकल को बैलेंस करते हैं। तो ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ मास। और डेफिनिट प्रोपोर्शन की बात क्या हो गई, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाया हुआ है, वाटर में यदि हम देखें तो 2 पार्ट इसका, यदि हम 18 ग्राम ले लें तो 2 पार्ट्स जो होगा हाइड्रोजन होगा, और 16 पार्ट्स जो होगा ये ऑक्सीजन होगा। तो इनका रेशियो निकालें तो 1:8 आएगा। मतलब ये रहा कि वाटर का सोर्स कहीं पर भी, ये लेबोरेटरी में बनाया गया हो, रिवर का वाटर हो, सी का वाटर हो, नाली से लिया गया वाटर हो, ग्राउंड वाटर हो, कहीं से भी वाटर लिया गया है, उसमें हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 ही होगा। सोर्स कुछ भी हो, इसके प्रिपरेशन का तरीका कुछ भी हो, तो ये हुआ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनर्जी रेडिएशन। तो यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें आप, तो यहाँ पे विजिबल कलर है, विजिबल कलर कहाँ से कहाँ तक, आप मान लीजिए ऐसे 350 नैनोमीटर से मान सकते हैं, या 400 नैनोमीटर मान लीजिए, 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 मान लीजिए, या 7 मान लीजिए, 750 नैनोमीटर के बीच में ये विजिबल कलर्स होते हैं। यहाँ पे रेड आएगा लास्ट में, यहाँ पे आएगा वायलेट कलर आएगा, इधर इंफ्रारेड आ गया, इधर अल्ट्रा वायलेट आ गया, UV आ गया, और इधर इसके इधर एक्सरे आएगा। तो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = H न्यू होता है, H न्यू, या फिर SC/λ।
Sc/λ। H क्या है? प्लांक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 होता है। अब देखिए ये फार्मूला हमें बता रहा है कि जिस कलर की फ्रीक्वेंसी हाई होगी या जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। उस जिस कलर का की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। तो अब इन सब में देख लीजिए, इधर राइट से लेफ्ट की ओर आप बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और वेवलेंथ डिक्रीज होगा। तो इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी इन सबों में सबसे कम है, उसके बाद विजिबल कलर का उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट का आएगा और अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एक्सरे की होगी। तो एनर्जी की देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्सरे की होगी, उससे कम अल्ट्रावायलेट, उससे कम विजिबल कलर और उससे कम इंफ्रारेड की होगी। तो सबसे ज़्यादा एक्सरे, उसके बाद यूवी आएगा, उसके बाद विजिबल आएगा, उसके बाद इंफ्रारेड आएगा। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? सी ऑप्शन सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एक्सप्लेन्स द एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या कहता है? ये कहता है कि दो ऑब्जेक्ट है ए बी एंड सी ले लीजिए। तो ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हों। यदि ए एंड बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब इन दोनों के बीच में कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। और बी एंड सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब बी और सी के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इन दोनों का भी टेम्परेचर सेम है। मतलब ए और सी, बी एंड सी अलग अलग, मतलब ए और बी सी के साथ अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यह है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर को डिफाइन करता है, इसे याद रखिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंटेनर है, यहाँ पे इसमें पिस्टन लगा हुआ है, गैस भरी हुई है, तो हम यहाँ पर यदि डेल्टा क्यू हीट सप्लाई कर दें, डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करें तो ये दो जगहों पे खर्च होगा। कुछ एनर्जी गैस के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च होगी, मतलब इंटरनल एनर्जी, जैसे इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, तो डेल्टा यू मान लीजिए, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में डेल्टा यू खर्च हो गया। और ये पिस्टन को भी तो ऊपर उठाएंगी ना, मूवेबल पिस्टन है, तो एक्सटर्नल वर्क भी होगा। तो डेल्टा क्यू का कुछ पार्ट जो हो गया, इसका कुछ पार्ट इज इक्वल टू कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी चेंज कराने में हो खर्च हो गया और कुछ पार्ट जो है एक्सटर्नल वर्क करने में खर्च हो गया। मतलब जो एनर्जी सप्लाई किया गया वो दो भागों में बट गया, इंटरनल एनर्जी चेंज कराने में और एक्सटर्नल वर्क करने में। तो मतलब एनर्जी तो कंजर्व रहा ना। तो सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही तो है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हीट हम सप्लाई किए इंटरनल एनर्जी को चेंज करवाने में भी कुछ खर्च हुआ है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि किसी भी सिस्टम को जब हम टोटल जितनी एनर्जी सप्लाई करते हैं टोटल का टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। मतलब ये रहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंजन नहीं बनाया जा सकता है जिसमें हम एनर्जी जितनी सप्लाई करें और टोटल का टोटल वर्क कर दें, मतलब उसकी इफ़िशियंसी 100% हो जाए, इफ़िशियंसी 1 हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं पॉसिबल हो सकता है। किसी भी इंजन को डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है जिसकी इफ़िशियंसी 100% हो, मतलब जितना एनर्जी सप्लाई करें टोटल का टोटल वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट इंजन में किसका यूज़ किया जाता है? गैस का। गैस के एक्सपेंशन पे बेस्ड है ये। तो गैस का जो एक्सपेंशन है वो इस चीज़ को किस चीज़ से एक्सप्लेन हो सकता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन कर सकता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज लॉन्ग रॉड्स आर यूज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन ऑफ फिशन इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर में, जैसे न्यूक्लियर फिशन में यूरेनियम 235 ले लीजिए, आप यूरेनियम ले लीजिए, तो जब इस पर स्लो न्यूट्रॉन से अटैक करवाया जाता है तो ये बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। बेरियम एंड क्रिप्टन में ये टूट गया, छोटे न्यूक्लियाई में टूट गया और यहाँ से लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। एनर्जी तो निकलती है, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स, एवरेज 3 न्यूट्रॉन्स कर दीजिए, 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं। तो 3 न्यूट्रॉन निकले तो ये 3 न्यूट्रॉन्स अदर 3 न्यूक्लियाई पे अटैक करेंगे, वहाँ से 3 निकलेंगे तो 9, फिर 9 न्यूक्लियाई पे अटैक करेंगे। तो इस तरीक़ा से ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बनते चला जाएगा।
तो इसको यदि कंट्रोल करना है, इस रिएक्शन को हमें कंट्रोल करना है, तो यहाँ से जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं इसमें से 2 को एब्जर्ब करवा लिया जाए। तो एब्जर्ब करवाने के लिए ही बोरॉन एंड कैडमियम रॉड को यहाँ पे इंजर्ट कर दिया जाता है, यूज किया जाता है। बोरॉन एंड कैडमियम के रॉड क्या करते हैं, इन दोनों न्यूट्रॉन्स को एब्जर्व कर लेते हैं। एक ही जाता है, एक न्यूक्लियस पे अटैक करेगा, फिर वहाँ से 3 निकलेगा, 2 को एब्जर्व करवाइए, एक न्यूक्लियस पे अटैक करेगा। इस तरीक़ा से ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो होगा इसका चेन कंट्रोल हो जाएगा और ये कंट्रोल चेन रिएक्शन बन जाएगा। इसी का यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो कैडमियम एंड बोरॉन दोनों का रॉड का यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इधर ऑर्गेनिक और इधर कंपाउंड यूज दिया गया है। इथाइल अल्कोहल का यूज एज ए फ्यूल इन द मोटर एंड एरोप्लेन्स किया जाता है। इथाइल अल्कोहल इथेनॉल का, ये सही है। मिथाइल अल्कोहल का यूज इन मेकिंग आर्टिफिशियल कलर्स, ये भी सही है। ग्लिसरॉल का यूज इन शू पॉलिश में किया जाता है, ये भी सही है। पायरीन का यूज इन सेटिंग फायर, आग लगाने में नहीं किया जाता, आग बुझाने में किया जाता है। अब देखते हैं, पायरीन में जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4। जब ये आग इस पे पड़ता है तो ये डीकम्पोज हो जाता है, फॉस्जीन गैस ये बना लेता है, COCl2 बना लेता है, ये फॉस्जीन गैस बना लेता है। और फॉस्जीन गैस जिस ऑब्जेक्ट में भी आग लगा हुआ है इस पे जाकर के फॉस्जीन गैस एक लेयर बना लेता है चारों तरफ से। और जब लेयर बना लेता है, लेयर बना करके ऑक्सीजन के कंटेक्ट को ब्रेक कर देता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को बंद कर देता है। जब भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो कंबसन नहीं होगा, बर्निंग नहीं होगी और आग बुझ जाएगी। तो ये आग बुझाने का काम करता है, आग लगाने का काम नहीं करता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 विच इज यूज एज रेडिएशन थेरेपी इमिट्स। कोबाल्ट 60 का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। मान लीजिए कोई भी सेल खराब है और उसको ख़त्म करना है तो किसका यूज़ करेंगे, वैसे रेज का यूज करेंगे जिसके पास एनर्जी ज़्यादा हो, जो उसको तुरंत अटैक करके ख़त्म कर दे उसको। तो इनमें से गामा रेज का यूज किया जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, इसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है, इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, इसका यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीक बेस। तो जो आसानी से OH माइनस दे देगा वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा, जो आसानी से नहीं देगा वो वीक बेस होगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH की बात करें, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 की बात करें, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस की बात करें, और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की बात करें, तो इनमें से सबसे आसानी से OH माइनस आयन ये देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्गर बेस है, वीक बेस नहीं है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड। तो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज अल्ट्रासाउंड मशीन में किया जाता है, सही है। इन डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट्स, ये भी सही है। सर्चिंग फॉर द हिडन ऑब्जेक्ट्स, ये भी सही है। कंट्रोलिंग ऑटोमेटिक डोर्स, ये भी सही है। ये चारों में यूज किया जाता है, सभी में यूज किया जाता है। ये सारी बातें कहाँ लिखी गई है, 9th क्लास के जो साउंड वाला चैप्टर है वहाँ पर ये क्लियरली लिखा गया है, ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो इसमें से ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द करंट फ्लोइंग इन ए वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस आर डबल्ड ईच देन द इलेक्ट्रिक पावर विल बी। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है P = VI होता है। यदि वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को 2 टाइम्स कर दें, करंट को भी 2 टाइम्स कर दें, तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4VI हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक पावर जो है 4 टाइम्स हो जाएगा, विल इंक्रीज 4 टाइम्स। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स, ये तीनों एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करते हैं। दैट्स वाई ये तीनों जो है वेक्टर क्वांटिटी है। वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट डज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड, जैसे मान लीजिए कि ये है और ये बॉब इससे लटका हुआ है, इसका मास m है और स्ट्रिंग का लेंथ l है, तो इसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2π√L/g। 2π√L/g। इसका मतलब ये रहा
कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें मास आया ही नहीं है इस फार्मूला में, तो लेंथ पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। और जब लेंथ पे डिपेंड करता है तो लेंथ यदि इंक्रीज करे या लेंथ डिक्रीज करे तो क्या होगा, टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में हीट ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से किसी भी सॉलिड का थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है, लेंथ इंक्रीज कर जाता है। और वहीं जाड़े के मौसम में टेम्परेचर कम होने से उनमें कंट्रैक्शन होता है, लेंथ डिक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है लेंथ चेंज हो सकता है। जब लेंथ चेंज होगा तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर वेरिएशन पे भी डिपेंड करता है। तो मास पे तो डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन, बी एंड डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी कहा जाता है वोन बेयर को, वोन बेयर को। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। विलियम रॉक्सबर्ग को क्या कहा जाता है, ये क्या है, इंडियन बोटनी के फादर हैं। और लुईस पास्चर, इन्होंने सबसे पहले टीका की खोज की थी, तो इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कह दीजिए। राइट ऑप्शन यहाँ पे भी सी तो होगा ही। और फ्रांसिस गेल्टन क्या है, ये सोशोलॉजी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया। तो इट इज कॉल्ड पावर सेंटर ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। इसके पहले क्वेश्चन जो था उसमें मैंने दिखाया है रिएक्शन को कि वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए पावर हाउस पावर सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, इसलिए ये पावर हाउस है। बिल्कुल सही बात है। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई S.J. सिंजर। ये इसको फर्स्ट S.J. सिंजर ने ऑब्जर्व नहीं किया था, फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया था। और अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा था और बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। तो ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया आर अब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इट कंटेंस DNA, RNA एंड राइबोसोम। तो इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, फॉल्स स्टेटमेंट बी है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लांट डिड इवानोवस्की डिस्कवर द वायरस। तो इवानोवस्की ये रशियन बोटानिस्ट थे। ये टोबैको के जो लीव्स, पत्तियों में मोज़ेक रोग जो होता है उसका कॉज क्या है, इस चीज़ को खोज रहे थे। तो उसी टाइम में इन्होंने वायरस को खोजा था। टोबैको हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which element was discovered by Carl Landsteiner and Wiener in rhesus monkey। तो rhesus monkey में उन्होंने RH फैक्टर को खोजा था, ब्लड के RH फैक्टर को। राइट ऑप्शन डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ब्लड डोनेट करते वक्त, ब्लड चढ़ाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कलर ब्लाइंडनेस। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर्स। ये सही है। लाल और ग्रीन कलर में उनको अंतर समझ में नहीं आता है, क्लियरली दिखाई नहीं देता है। इट इज ए जेनेटिक डिजीज, ये भी सही है। फीमेल्स आर अफेक्टेड बाई दिस डिजीज ओनली व्हेन बोथ देयर क्रोमोजोम्स आर अफेक्टेड। बिल्कुल ये भी सही है। फीमेल में XX क्रोमोजोम्स होता है, इसलिए इनको कम होता है और ये तभी कलर ब्लाइंडनेस में आ सकता है जब ये दोनों इन्फेक्टेड हो। इन कलर ब्लाइंडनेस बोथ द क्रोमोजोम्स X एंड Y मस्ट बी अफेक्टेड इन मेल्स एज वेल। नहीं, इसमें X मेल में जो है XY क्रोमोजोम्स है, एक ही X है, इस कारण से एक ही X इन्फेक्ट हो जाने से कलर ब्लाइंडनेस आ जाता है मेल में। कलर ब्लाइंडनेस को एक मदर अपने मैके से लेकर के आती है और अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर देती है। तो इसमें से डी वाला गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ए मेल हार्मोन। तो ये मेल हार्मोन नहीं है। रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन भी मेल हार्मोन नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है, एंड्रोजन जो है मेल हार्मोन है। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने में हेल्प करता है, लाता है, जैसे दाढ़ी मूछें आना, आवाज़ का मोटा हो जाना, बिहेवियर में एग्रेसिव बिहेवियर हो जाना, ये सारी चीज़ें आती है इस एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द लीफ। द लीफ इज कंसिडर्ड टू बी द फ्लैटेंड एंड लेटरल आउटग्रोथ ऑफ द स्टेम। ये बिल्कुल सही है। ग्रीन कलर्स ऑफ लीफ इज ड्यू टू द क्लोरोफिल। ये भी सही है। द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस
द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट, ये भी सही है। देर आर मेनली टू पार्ट्स ऑफ द लीफ, लेमिना एंड पेटियोले, नहीं 3 पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, पेटियोले एंड लेमिना, 3 पार्ट्स होते हैं, तो ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो एप्पल पोम होता है, गावा बेरी, मैंगो ड्रूपे, लेकिन बनाना जो है पीपो नहीं होता है। बनाना जो है एक बेरी है, क्योंकि इसका एडिबल पार्ट मिडिल एंड इनर वाल होता है। वाटरमेलन जो है वो पीपो टाइप का फ्रूट है, इसका वाटरमेलन का एडिबल पार्ट जो होता है मिडिल एंड इंडोकार्प होता है। सो ये गलत है, बी गलत है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लाइट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लोवेस्ट। तो देखिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस बात पे डिपेंड करेगा, कौन सा कलर क्लोरोफिल पिगमेंट को एक्साइट करता है, कम एक्साइट करता है या ज़्यादा एक्साइट करता है। तो रेड कलर जो है क्लोरोफिल पिगमेंट को ज़्यादा एक्साइट करता है, इस कारण से रेड कलर के प्रेजेंस में रेड कलर में फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होता है। लेकिन वायलेट कलर जो है कम एक्साइट करता है क्लोरोफिल पिगमेंट को, इस कारण से वायलेट कलर के प्रेजेंस में वायलेट कलर में फोटोसिंथेसिस का रेट कम होता है। तो वायलेट कलर होगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कि एक चींटी इधर से घूम करके घूमते हुए यहाँ पे चली गई, तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये सही है। डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल नहीं, डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, तो ये स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बिल्कुल पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, तो ये सही है। द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन आल्सो बी जीरो, बिल्कुल जीरो हो सकता है। यही चींटी जो है मान लीजिए गई अपना खाने की चीज़ें ले करके फिर जहाँ रहती है वहाँ आ गई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो ये भी सही है। गलत कौन सा है, बी है, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही हमें चूज करना है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल बेसिक एलिमेंट इन द ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वो है कार्बन। कार्बन हर जगह मौजूद है, जितने भी एलिमेंट अब तक खोजे गए हैं उस सभी मिलकर के जितने कंपाउंड नहीं बनाते हैं, अकेले कार्बन उनसे बहुत बहुत ज़्यादा कंपाउंड बना लेता है, और ऐसा पॉसिबल होता है इसके कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन अपने किसी दूसरे कार्बन के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, उसी तरीक़े से कार्बन किसी अदर के साथ भी सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ये प्रॉपर्टी जो है इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है, और इसी की वजह से इसके बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ये हर जगह मौजूद है, राइट ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट 2 के फुल सिलेबस के टेस्ट 2 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।